नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। रावण दहन का कार्यक्रम भी आज के दिन जगह जगह पर देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह दिन खास होता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। लेकिन किसान इस बार कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि इस समय देश का अन्नदाता सड़कों पर है, रेलवे ट्रैक पर बैठा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय उन्हें परेशान करने पर तुली हुई है। सरकार की ओर से उनके खिलाफ ही कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे वे और भी मजबूर हो जाएंगे और इसलिए जगह जगह किसानों ने मोदी सरकार का पुतला जलाया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पंजाब की अलग अलग जगहों की संगरूर और बटाला में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया गया है और रावण दहन की बजाय आज पीएम मोदी का पुतला जगह जगह पर जलाया जा रहा है। पंजाब में किसानों ने दशहरे के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। दरअसल किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा है और केंद्र सरकार पर आरोप है कि किसानों से बात नहीं की जा रही, बल्कि उन पर कानूनों को थोपा जा रहा है। हमारे संवाददाता नितिन ने बटाला में प्रदर्शनकारी किसानों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? सोनू औलख है। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟਲ ਖੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ यही है जी, मैं दूसरे नंबर पे पैच कर रहा हूँ। एक सेकंड जी। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।
कैमरामैन निशांत नाल ANB न्यूज़ लिए नितिन लूथरा बटाला। नितिन लूथरा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आज जैसे आपने जो दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला वहां पर जलाया गया है, क्योंकि जो किसान कानून है उनका विरोध लगातार जारी है, तो ऐसे में क्या कुछ चेतावनी केंद्र सरकार को किसानों की तरफ से दी गई? देखिए, आज बहुत दशहरे का त्योहार है और हर बार रावण जलाया जाता है। सदियों से ऐसी ही प्रथा है कि दशहरे वाले दिन रावण का देह संस्कार किया जाता है, लेकिन इस बार ज्यादातर किसान जथेबंदियों ने रावण रूपी रावण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर वो जलाया। और साथ ही किसान जथेबंदियों की माने तो उनका कहना है कि ये संघर्ष और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये तीनों ऑर्डिनेंस रद्द नहीं कर देती। आने वाले दिनों में 25 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं 31 के करीब किसान जथेबंदियां, उसके बाद 5 तारीख को 200 के करीब किसान जथेबंदियां हैं जो मीटिंग करेंगी और नई रणनीति उलीकेंगी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह संघर्ष को नया रूप दिया जाए और किस तरह से संघर्ष को तीखा किया जाए। जी नितिन, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रेल रोको आंदोलन भी चलाया जा रहा है, तो क्या बटाला में भी रेलवे ट्रैक पर वहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, लगभग 25 दिन हो गए हैं। पहले पटरियों पर किसान डटे हुए थे और अब पटरियों से प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो विधानसभा में पंजाब सरकार की तरफ से बिल पास किया गया उसके बाद किसानों को थोड़ी संतुष्टि जरूर हुई है, लेकिन किसान अभी भी किसी भी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे। और किसानों की माने तो किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार ने उनसे विनती की थी कि कुछ दिनों के लिए ट्रैक खाली कर दिए जाए, क्योंकि पंजाब में अगर कोयला नहीं होगा तो ब्लैकआउट हो जाएगा पंजाब। इस वजह से उन्होंने कुछ दिन के लिए पटरियों से उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं और किसानों का कहना है कि अभी भी प्लेटफॉर्म घिरे रहेंगे और आने वाले दिनों में हो सका तो एक बार फिर पटरियों पर उतरेंगे और पटरियां जो है एक बार फिर रोक दी जाएंगी। फिलहाल पैसेंजर गाड़ी को निकलने की इजाजत नहीं है, केवल और केवल मालगाड़ी ही निकल सकती है जो कि कोयला वगैरह लेके आ सकती है, तेल लेके आ सकती है। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को जाने की आज्ञा नहीं है। अभी भी दिन रात जो है 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, किसानों के प्रदर्शन जो है रेलवे ट्रैक पर जारी है। जी बिल्कुल नितिन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच कीर्तिपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कीर्तिपाल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से संगरूर में विरोध प्रदर्शन किए गए, किस तरीके से आज विजयदशमी के खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बना करके उन्होंने जलाया है पुतला जो है वो, तो क्या कुछ इस बारे में जानकारी, क्या कुछ किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई केंद्र सरकार को? जी बताना चाहूंगा, जैसे प्रोटेस्ट तो जो है किसानों का चल ही रहा है, उसको लेकर जो दशमी के दिन जो है रावण का पुतला फूका जाता है, उसको लेकर जो किसान जथेबंदियां ने लगभग संगरूर जिले में 11 जगहों पर मोदी का पुतला बनाकर जो है उसको जलाया, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो खेती के 3 ऑर्डिनेंस बिल पास किए गए हैं वो किसान विरोधी ही नहीं, पूरे पंजाब के विरोध में। इसलिए एक सिंबल के तौर पे जो है मोदी और उनके मंत्री को जो है पुतला फूंक कर एक संदेश दिया गया है सरकार को, क्योंकि फिलहाल जो है कैबिनेट में जरूर मता पास करके केंद्र के बिलों के खिलाफ जरूर आवाज उठाई गई है, पर अभी फिलहाल मसला जो है हल नहीं हुआ, जिसको लेकर जो है किसान जथेबंदियां आगे की रणनीति भी बना रही हैं और आरोप भी लगा रही है कि केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी मिली भुगत से जो है फिलहाल मामला जो है टाल दिया गया है। फिलहाल मालगाड़ियों के जैसे कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए खोल दिया गया है। किसान जथेबंदियां जो आगे की रणनीति आने वाले समय में बनाएगी, क्योंकि आगे के जो मालगाड़ियां हैं जब आवाजाही है, क्योंकि मसला जो किसानों का वहीं खड़ा है, क्योंकि जो खेती ऑर्डिनेंस बिल हैं वो पास तो हो चुके हैं केंद्र के पास से, अब जो स्टेट गवर्नमेंट में विरोध में बिल पास किया है उसका आगे क्या होगा, उसका कितना समय लगेगा और किसान जथेबंदियां कब तक प्लेटफार्म या सड़कों पर या रिलायंस पंपों के आगे बैठी रहेंगी, ये जरूर एक किसानों को इस बात में आगे के समय में जरूर फैसला इस चीज का लेंगे, क्योंकि अगर टाइम बीता गया तो उनको लगता है कि जो हमारा। बिल्कुल कीर्तिपाल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में किसान कानूनों का विरोध चल रहा है, ऐसे ही हरियाणा में भी किसान कानूनों का विरोध चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। 3 केंद्रीय किसान कानूनों के विरोध के लिए भारी जद्दोजहद के बीच किसानों ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दशहरे के अवसर पर रावण की बजाय पीएम मोदी का पुतला फूंका गया, लेकिन वहां भारी पुलिस बल को पहले ही तैनात किया गया था और भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता
सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। भारी पुलिस बल होने के बावजूद किसान मोदी सरकार का पुतला फूंकने में कामयाब भी रहे। हालांकि किसानों को पुलिस की लाठियां यहां पर खानी पड़ी। किसान को दिख रहा है आने वाला भविष्य। किसान देख रहा है कि वो सरकार के काले कानूनों से भूख से मरेगा। इसलिए किसानों ने ये फैसला किया कि आज के इस युग के 2020 के रावण नरेंद्र मोदी का पुतला दशहरे वाले दिन रावण की जगह फूंका जाएगा। और उस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनिट शाहबाद अपने मकसद में पूरी कामयाब हुई है। इसके लिए मैं पत्रकारों को और किसान बंधुओं आपके ऊपर आई, वो ऐसे है, वे पुलिस का काम है रोकना और हमारा काम है करना। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ऊपर के आदेश हैं, खट्टर साहब के आदेश हैं, तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। कई किसानों को, मेरे गांव के जोगिंदर सिंह है, उनका सिर फट गया है। कई किसानों का डीएसपी की वर्दी किसानों के खून से सनी हुई है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। हरियाणा सरकार जो है वो जंगली नीति पे उतर आई है। पीछे पिपली में लाठीचार्ज किया था, शाहबाद में कर दिया है। एक बार फिर से कुरुक्षेत्र की ही है, पहले पिपली और अब शाहबाद में लाठीचार्ज किया गया। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में विरोध प्रदर्शन को आगे ना बढ़े इसलिए वहां पर लाठीचार्ज भी करवाया जा रहा है पुलिस से। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर। जैसे पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला आज विजयदशमी के दिन जलाया गया, ऐसे ही हरियाणा में भी किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था और ऐसे ही जगह जगह पर पुतला जो है वो किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया। चंद्र प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से किसानों पर यहां कार्रवाई की गई है? एक बार फिर से खट्टर सरकार का हंटर किसानों पर चला है। जी देखिए, कुरुक्षेत्र में आज ये जो प्रदेश सरकार में पूर्व में राज्य मंत्री रहे कृष्ण बेदी और वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव हैं, उनके घर के बाहर ये पुतला जलाया गया था। और पुतला जलाने को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के साथ झड़प भी हुई, तो पुलिस ने बचाव में किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाई। इसको लेकर माहौल ज्यादा खराब हो गया और काफी देर तक हंगामा होता रहा है। तो काफी देर बाद माहौल शांत हुआ है और कई लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी किया था और मामूली धाराएं भी लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के लिए किसानों का आंदोलन चिंता की लकीरें खड़ी कर रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोई दिन नहीं ऐसा जा रहा जिस दिन किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना कर रहे हैं। किसानों का इस जो अब लाठीचार्ज किया गया है, इस लाठीचार्ज के बाद क्या कुछ चेतावनी हरियाणा सरकार को भी दी गई है? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है वो बीजेपी की है, इसीलिए किसानों के विरोध में यहां पर दिखाई दे रही है। भाजपा के जो सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उन्होंने किसानों को समझाया था कि जो अध्यादेश बिल है काफी अच्छा बिल है, मगर जो किसान है वो टस से मस नहीं हो रहे और किसान दिन प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसानों ने जो अगला फैसला लिया है 29 तारीख को अंबाला में जो उनकी किसान राष्ट्रीय महापंचायत होगी, क्योंकि जो नारायणगढ़ में रैली के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी, तो जिला प्रशासन ने उनके ऊपर 302 जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, उसको लेकर भी किसान कहीं ना कहीं गुस्से में है। जो 3 अध्यादेश विरोधी बिल है उसको भी लेकर, तमाम बिल को लेकर ज्यादातर प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों ने कहा होगा कि 5 नवंबर को, जब 5 नवंबर होगा तो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग उसको भी जाम करते हैं किसान। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश। तो एक बार फिर से किसानों पर हरियाणा की खट्टर सरकार का हंटर चला है। किसान इसमें कई मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है और पाला बदलने का सिलसिला भी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। एक और कांग्रेस विधायक ने राहुल लोधी के रूप में पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक राहुल सिंह लोधी पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गर्मागर्म सियासी माहौल में और भी आग सी लग गई है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर विधायक खरीदने का आरोप लगाया है और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने यह कहा है कि भाजपा नैतिक मूल्यों में गिरने से अभी भी बाज नहीं आ रही। महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर गई है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चली रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में आएगा। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। तो शैलेंद्र, किस तरीके से गर्मा गर्म माहौल जो बना हुआ है मध्य प्रदेश में और अब इसमें और भी जो है वो तेजी आ गई है, क्योंकि राहुल लोधी जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद कांग्रेस अब हमलावर दिखाई दे रही है बीजेपी पर। बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार कांग्रेस विधायक बीजेपी में जाते नजर आ रहे हैं और वहीं अगर दमोह क्षेत्र की बात है तो दमोह कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी द्वारा जिस तरह बीजेपी में शामिल होना बता तो बड़ा एक सत्ता पलटवार पहले ही नजर आ रहा था और एक और कड़ी जुड़ गई है। अब चूंकि बीजेपी को सत्ता बनाने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8-9 विधायक की जरूरत है और 8-9 सीटों पर जीतना जरूरी होगा। और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अब यह 29वीं सीट होगी जिस तरीके से राहुल लोधी द्वारा बीजेपी में शामिल होना पाएगा। तो साफ है कि लंबे तौर पे वहां पर जिसका श्रेय जरूर गोविंद सिंह राजपूत को नहीं जा रहा है, जो सुर्खी सागर विधायक और परिवहन मंत्री है। दमोह से लगातार युवा नेता है राहुल लोधी और समस्याओं को लेकर कई बार उनके सामने समस्या आई थी, उसको लेकर उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामना सुनिश्चित किया। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं उससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है बड़े स्तर पर और इसीलिए बाकी के विधायकों को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी संगठन काम करता है और संगठन के साथ साथ यहाँ की रणनीतियां बड़ी परफेक्ट होती है। कांग्रेस को रणनीति के चलते कई बार मुंह की खानी पड़ती है। यही कुछ वजह है कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद भी अपनी सरकार अपने विधायकों को सलामत नहीं रख पाई और एकदम सरकार के पावर मिलने के कारण कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, एक बड़ा
बड़ी दर्जनों विधायक जिस तरीके से बीजेपी को शामिल कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चूक कांग्रेस के लिए भी होगी। लेकिन शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी सबक नहीं ले पाई कांग्रेस, अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रही है। बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जाएगा, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी में शामिल हो रहा है और लगातार प्रदेश के लिए उपचुनाव जैसी एक बड़ा जो समस्या होती है, बड़ा धनबल खर्च होता है, और इन चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने विधायकों को संभालने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। और कांग्रेस के लगातार बयानबाजी, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या प्रदेश नेतृत्व की बात करें, तो उनके दिग्गजों द्वारा जिस तरह से बीजेपी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं और सब विधायकों को भी साथ में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी विधायकों के अंदर अंदरूनी तौर पर भी देखने में आ रही है। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्षेत्र प्रदेश में विकास के मुद्दे काफी पिछड़ चुके हैं, और टैक्स की बात करें तो लंबे पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स वाला प्रदेश बन चुका है, और यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज भी है। विकास बड़ी अहम मुद्दा भी होगा, लेकिन कांग्रेस को एक बहुत बड़ी यह चुनौती सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ में बिके हैं राहुल लोधी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ सच्चाई है, या क्या कुछ प्रलोभन राहुल लोधी को बीजेपी की तरफ से दिया गया? क्या इस बारे में कुछ सूत्रों के हवाले से कोई खबर? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है विधायकों को खरीद फरोख्त की बात, इस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें अंदरूनी बात की, तो यह तो सीधी तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर है। इसमें कागजी हकीकत तो सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि अंदरूनी मामले ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर कई विधायक ऐसे भी देखने में नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जितने भी विधायक गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बिकने वालों में से तो नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का रसूख हो और अगर खुद का अगर बैकग्राउंड देखो तो काफी बड़ा बैकग्राउंड है। उनके लिए 150 करोड़ से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के एक दिग्गज नेता है। दूसरी ओर अगर विधायकों की बात करें, तो ये निश्चित ही वो विधायक है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन के टिकट उनको मिली और वो विधायक आज बने हैं, तो निश्चित ही वह एक और यह भी देख रहा हूँ। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जितने भी विधायक थे, उनके क्षेत्र का विकास नहीं होना पाएगा, ये भी चीजें सामने आई। तो साफ है कि तमाम समस्याओं को लेकर यह कदम कांग्रेस के विधायक उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरीके से राहुल अब अगर चुनाव से पहले, उपचुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो क्यों वो पहले नहीं आ गए? बहुत पहले जब बाकी के जो विधायक आए थे तब उनके साथ वो क्यों बीजेपी में शामिल नहीं हुए? इतनी लेट होने की क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, इस बात को लेकर संगठनों में लगातार जिस तरह से बीजेपी को 9 सीटों की आवश्यकता और 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो 9वीं सीट और खाली हो गई है, मतलब 29वीं सीट खाली ये हो गई है। अब अगर देखने में यह आता है कि तमाम समस्याओं का जिस तरह से सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस प्रदेश में काफी पिछड़ चुकी है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व में संगठन पूर्व में भी वितरगात और संगठित नहीं थी, यह भी एक वजह मानी जाती है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से देश के साथ प्रदेश में भी गायब होती जा रही है और अपनी खुद की सत्ता नहीं बचा पा रही है, तो इसमें एक बड़ा सवाली निशान खड़ा होता है कि आखिर इनके शीर्ष नेतृत्व में संगठित क्यों नहीं है। तो लेकिन उपचुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इन नेताओं पर जिन्होंने बगावत की है उन पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में जनता का मूड क्या कुछ है ऐसे नेताओं को लेकर के जिन्होंने अपना पाला बदला है? देखिए, कई ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो कांग्रेस सरकार में भी वो है मंत्रिमंडल की उनको बड़ा विभाग मिला था। आप जिस व्यक्ति से जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव से पहले ये एक राजनीतिक भूचाल ला देने वाला फैसला राहुल लोधी की तरफ से लिया गया है। कांग्रेस के विधायक हैं और अब वो बीजेपी में जो है वो शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो गया है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है और बीजेपी मजबूत होगी ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। नमस्कार, मैं पंडित मनीष गोनियाल समस्त प्रदेश वासियों को और मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता को और उत्तराखंड वासियों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण देने का लगातार आरोप लगता रहा है, लेकिन अब शायद प्रशासन जाग गया है। यही कारण है कि हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र फिरूपुर पुलिस ने माफिया पर कार्रवाई की है और अवैध खनन और ओवरलोड भरे हुए 3 डंपर सीज कर दिए गए हैं। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र और पथरी भोगपुर सहित बिशनपुर झरड़ा में अवैध खनन का खेल दिन रात चलता है। ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई न होने से राजस्व विभाग को भारी नुकसान भी होता है। राजस्व विभाग की कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर के खनन माफिया चांदी काटने में जुटा हुआ है, और लेकिन इस बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विकास खरे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी भी की गई? बिल्कुल जितेंद्र, आपको बता तो लगातार हरिद्वार में अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आज बात की जाए तो हरिद्वार पुलिस जो है कुंभकर्ण की नींद से जागी है।
बात की जाए तो थाना पतरी क्षेत्र के फैजपुर कटापुर के पास जो है 2 डंपर सीओ लखतर के द्वारा सीज किए गए। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो फैजपुर चौकी के द्वारा भी 3 डंपर अवैध खनन में सीज किए गए। बात की जाए तो राजस्व विभाग लगातार कुंभकर्ण की नींद में, जिस तरह से राजस्व विभाग को जो खनन माफियाओं को कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरह की कुछ भी तरह की कार्रवाई खनन माफियाओं पर नहीं हो रही है। बात की जाए तो रात में भी खनन जो है खनन माफिया रात अंधेरी का फायदा उठाकर जो रात में खनन करते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो कि खनन माफियाओं से परेशान हो चुके हैं, कई खेत ऐसे हैं जो कि खोदे जा चुके हैं, जिनका खेतों को जो है बंजर भूमि बना दिया गया है। किसान लगातार परेशान है, किसान के द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। हितेंद्र, बिल्कुल विकास, लगातार आप ये तमाम जो खबरें हैं वो भेजते रहते हैं। दिन में भी अवैध खनन, रात में भी अवैध खनन, लगातार अवैध खनन हो रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से 3 डंपर को सीज किया गया है, क्या ये कार्रवाई बड़े स्तर पर की जाएगी या फिर सिर्फ ये एक छोटी सी मामूली सी कार्रवाई करके इनको छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर हरिद्वार प्रशासन करता है। अगर बाई चांस इन खनन माफियाओं लगातार इसमें जो शिकंजा कसा गया, तो ऐसे में जो खनन माफियाओं के जहन में जो प्रशासन का डर है वो भी किसी तरह से नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है, इस तरह रात में जो खनन चल रहा है, कई जगह ऐसे हैं जो कि खेत के जो है बंजर भूमि बना दिया है। रात में जो है खनन लगातार जारी है। ऐसे में जो क्रेशर जो माफिया है, जो खनन माफिया है, वो लगातार रात का फायदा उठा करके जो खनन कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सड़कों पर भी जो वाहन है वो भी ओवरलोडिंग खनन वाहन जो है रात दिन घूम रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा कई कार्रवाई ऐसी है जो अब तक नहीं की गई है। हालांकि खनन पूरी तरह से जो है रोक लगी हुई है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा रोक लगा गई है, लेकिन बावजूद इसके खनन जो है अभी भी लगातार जारी है। कई संस्था ऐसी है जो कि खनन के विरोध में मां गंगा को बचाने में लगी हुई है, लेकिन खनन माफिया ये है कि किसी तरह से जो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है प्रशासन की तरफ से, तो अभी भी खनन माफिया पूरी तरह से खनन माफिया के हौसले बुलंद है। ऐसे में अगर राजस्व विभाग इन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो और भी किसानों को आने वाले समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई खेत ऐसे जो कि बंजर भूमि बना चुके हैं, किसान लगातार इसमें आवाज उठाते हैं, लेकिन किसानों की आवाज भी दबा दी जाती है। प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। हितेंद्र, लेकिन विकास, जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है, क्या ये कार्रवाई मौके पर पहुंच करके की गई है, घटनास्थल पर जहां से अवैध खनन किया जा रहा था वहां पर की गई है, या फिर सड़क पर? किस आधार पर यह कार्रवाई की गई? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें, सबसे पहले एनबी न्यूज ने जो है फैजपुर चौकी को अवगत कराया था कि इस तरह से जो है डंपर ओवरलोडिंग में चल रहे हैं। जब फैजपुर पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई की तो पता चला कि ना तो किसी तरह का जो है खनन माफियाओं को रवाना था और खुले में ही जो है डंपर लगातार चल रहे। तो ऐसे में जो है एनबी के माध्यम से अवगत कराने के बाद पुलिस हरकत में आई, तब जाकर के 3 डंपर आज फैजपुर पुलिस चौकी के द्वारा सीज किए गए। बात की जाए तो जिस तरह आज राउंड सीओ लखतर रोड पर हो रहा था, तो आज कटापुर के पास भी सीओ ने भी 2 डंपर सीज किए। तो ऐसे में अगर प्रशासन लगातार, अगर पुलिस भी जो है कार्रवाई करेंगे तो कहने के जो खनन माफियाओं का हौसला है वो भी कम बुलंद होगा। और बात की जाए तो जिस तरह से जो है रोड पर खुलेआम अभी भी जो है ओवरलोडिंग वाहन चले हैं, तो इन पर राजस्व विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में। राजस्व विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी खनन माफियाओं के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आ रही है। हितेंद्र, जिस तरीके से एनबी न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में सुबह 8 बजे भी इस मुद्दे को उठाया और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है कहीं ना कहीं। अगर विभाग की बात करें तो ये एक छोटी सी कार्रवाई करने के बाद इससे ऐसा नहीं लगता कि टीम जो है वो सतर्क दिखाई दे रही है, या फिर आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि कोई रणनीति ऐसी बनाई गई है कि जहां से अवैध खनन किया जा रहा है वहां पर जाके छापेमारी की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें, इस तरह की प्रशासन के द्वारा कोई भी अभी तक रणनीति नहीं बनाई गई है। अगर प्रशासन इस बात पर एनबी की न्यूज पर अगर इस पर संज्ञान लेता तो अब तक रणनीति बनती। और अब बात की जाए तो जो एक्शन है खनन माफिया के खिलाफ वो भी होता हुआ नजर आता, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हरिद्वार प्रशासन के द्वारा की जाती है। बात की जाए तो अभी भी अवैध खनन लगातार जारी है। रात के अंधेरे में जो खनन माफिया चांदी काट रहे हैं, तो ऐसे में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई होती हरिद्वार प्रशासन के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा होती हुई नजर आ रही है। तो इंदर लगातार अगर खनन माफियाओं के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं होगी तो और भी खनन माफिया के जो हौसले हैं वो भी बुलंद होंगे। और जो किसान है वो भी पूरी तरह से परेशान है। किसानों के खेत जो है काट दिए जाते हैं, किसानों को यहाँ तक की मारने तक की धमकी दी जाती है अगर किसान इसके विरोध करता है। तो ऐसे में किसान पूरी तरह से परेशान है, किसानों की खेती बर्बाद कर दी जाती है, तब भी प्रशासन हरकत में नहीं आता है। चंद, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव है? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें, प्रशासन का साफ तौर पर कहना कि परमिशन के नाम पर जो है पट्टा चला है, लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से जो पट्टे हरिद्वार या लखतर क्षेत्र में चलते हैं, पट्टे की जो परमिशन है वो किसी और खेत से, लेकिन गंगा में जाकर जो है वहां पर खनन माफिया के द्वारा खनन किया जाता है। ऐसे में भी प्रशासन किस तरह से संज्ञान नहीं लेता है।
बात खसरे नंबर की बात अगर पूछी जाए तो खसरे नंबर तक कब तक नहीं पहुंचा, ना ही मौके पर जाकर इस तरह का निरीक्षण हरिद्वार प्रशासन करता है। ऐसे में तो जो खनन माफिया है वो लगातार चांदी काट रहा है, राजस्व विभाग को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर समय रहता है राजस्व विभाग की कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा और भी जो है माँ गंगा के जैसी भी उतार कर वहां पर खनन किया जाता है, कई गहराई तक जो है खनन किया जाता है, कई बड़े बड़े कई फीट तक जो है गड्ढे किए जाते हैं। ऐसे में अगर प्रशासन हरकत में आए तो कहीं न कहीं अवैध खनन और से बच सकता है, जो माँ गंगा की अविरता है वो भी बरकरार होती है। बिल्कुल, क्या क्या किसानों की तरफ से उच्च अधिकारियों तक इस बात की शिकायत पहुंचाई गई है? बिल्कुल हितेंद्र, जिलाधिकारी श्री रविशंकर को अवगत हमारे द्वारा क्या गाते हैं एमबी के माध्यम से, लेकिन अब तक भी जिलाधिकारी को ठाकुर में दिए गए थे कि अगर इस तरह से कहीं भी अवैध खनन होता तो उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, पर अब तक भी जिलाधिकारी निर्देश पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार निर्देश दिए जाता है, लेकिन खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि रात का फायदा उठाकर खनन पूरी तरह से कर रहे हैं। तो क्रेशर है वहां पर जो है सामग्री पहुंचाई जा रही है। रात में जो कई किसानों के खेत ऐसे हैं जो खनन माफियाओं ने खोद डाले हैं, कई पट्टे ऐसे हैं जो चोरी कर करके जो किसानों के जो पट्टे उनको भी खोद डाला है। खेत की भूमि को बंजर भूमि खनन माफियाओं के द्वारा बनाई जा रही है। जो खेत है वो उनकी किसानों की खेती को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हरिद्वार प्रशासन समय रहते नहीं जागता है, खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होकर जहां पर किसानों की आवाज लगातार दबा दी जाती है। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार एएनबी न्यूज़ ये खबर उठा रहा है, ये मामला उठा रहा है कि अवैध खनन लगातार उत्तराखंड में जारी है कई इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद भी कुंभकर्णी नींद शायद विभाग सोया हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रामनगरी अयोध्या में चल रही फिल्मी सितारों की वर्चुअल रामलीला का आज आखिरी दिन है। विजयदशमी के मौके पर 55 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है, जिसका भगवान श्री राम वध करेंगे और इस बार रामलीला में दिल्ली से लाए गए रावण के विशेष पुतले का दहन किया जाएगा। इस पुतले की खासियत ये है कि इसके जलने से प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम होगी और इसे ग्रीन पटाखों से तैयार किया गया है। दशहरे के अवसर पर अयोध्या में इस बार इस तरह का रावण जो है वो पहली बार जलेगा और इसको लेकर के भी उत्साह है और जिज्ञासा है लोगों में। और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी और उनके साथ मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी मौजूद रहेंगी। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पर गौरव, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कितने बजे रावण का दहन किया जाना है? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में 17 अक्टूबर से 9 दिन का रामलीला चल रहा था, जहां पर आज रामलीला का आखिरी दिन है और यहां पर आज दशहरे के अवसर पर 55 फीट का रावण जो है दहन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुख्य तौर पर मालिनी अवस्थी और गृह वो सचिव अवनीश अवस्थी को आना था, लेकिन वो कुछ देर की वजह से अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर। अभी पुतला दहन नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं इसे अगर हम पुतले की बात कर लें तो ये जो है 55 फीट का पुतला है और इसको ग्रीन पटाखों की तर्ज पर तैयार हुआ है विशेष रावण, जिसका दहन जो है किया जाएगा हितेंद्र अयोध्या में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वर्चुअल वहां पर रामलीला चल रही है उसके बारे में भी ये जानकारी मिल पा रही है कि रिकॉर्ड दर्शक उसे दहन किया जाना है। इससे इसकी खासियत ये है कि इससे कम प्रदूषण जो है वो फैलेगा। रामलीला आज विजयदशमी का जो दिन है और आखिरी दिन वर्चुअल रामलीला का ऐतिहासिक रामलीला इस बार अयोध्या में देखने को मिल पा रही है। जिस तरीके से 55 फीट का ये रावण का पुतला जो आप देख पा रहे हैं ये बनाया गया है और जो दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है रामलीला का मंचन, वर्चुअल रामलीला जो अयोध्या में हो रही है उसका प्रसारण जो है वो किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।